I praise and thank God. God gave me this privilege that in this evening, in this convention time, so I can share the word of God. मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ लिए मौका बख्शा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और स्तुति करता हूँ कि इस सम्मेलन के दूसरे दिन में इस शाम के समय परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने के लिए मुझे ये सौभाग्य दिया। So let us turn to the book of Acts and chapter 9 and verse 4, 5 and 6. आओ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ रसूलां दे करतब 9 अध्याय उसका 4, 5 ਤੇ 6 वचन। आओ हम लोग अपने वचन को प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 4, 5, 6 वचन पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਏ ਸਲੂਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Glory be to God. परमेश्वर के नाम दी महिमा होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So this is the story about this Saint Paul. ए संत पौलुस के बारे उसकी कहानी है। ये संत पौलुस की कहानी है। How that he met with Jesus and from a sinner how he became a great saint. ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ महान संत ਬਣਿਆ। उसका कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ और एक बहुत बड़े पापी से वो कैसे एक महान भक्त या संत बन गया। So this incident happened between Jerusalem and this Damascus. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ यरूशलेम ਅਤੇ दमिश्क ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ये सारी घटना जो है यरूशलेम और दमिश्क के रास्ते के बीच में हुआ। So this Paul, his old name was Saul, and he was a Jewish person, and he was very jealous for his religion. पौलुस का पुराना नाम सौलुस सी ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। पौलुस का जो पुराना नाम था वो शाऊल था, वो यहूदी था और अपने धर्म के लिए वो बहुत ही जलन रखता था। He was all right, but he was having only one mistake, that he was not accepting Lord Jesus Christ and he was hating Jesus. ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ स्वीकार नहीं करता सी, सगों ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। उसमें उसका जीवन बिल्कुल सही था, पर उसमें एक ही गलती थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता था और उसको बहुत सताता था। So whosoever will take the name of Jesus, they will worship Jesus. If we talk about Jesus, so he will create problem for them. And even that he will try to put them in prison, and it is written, and some people have been killed also. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। वो जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे, उसकी उपासना आराधना करते थे, उसके पीछे चलते थे, वो उन लोगों को पकड़ता था और उनको कैद खाने में डाल देता था और कई बार ऐसा भी लिखा है कि वो मार देता था। Not only those days, nowadays also these Jewish people are like this. One of our believer, he went to in tour to Jerusalem and Israel, and he was having same experience.
ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ये यहूदी लोग उन्हीं दिनों में ऐसा नहीं करते थे, पर आज के दिनों में भी वो ऐसा ही करते हैं। हमारा एक विश्वासी जो है वो यरूशलेम में गया और उसने बताया कि वो यहूदी आज भी ऐसा ही करते हैं। So he was very happy. He was excited. Yes, I got a chance. So far I was reading in the Bible and hearing in the churches, but now I am seeing all these Jewish people, I am seeing Jerusalem like this, and he decided that I will tell one Jewish person about Jesus and salvation. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ मैं परमेश्वर का वचन सुनावांगा। यरूशलेम में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित था। उसने सोचा कि मैंने परमेश्वर के वचन में बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है और सुना भी है, पर अब मुझे जो एक अवसर मिला है मैं जरूर एक ना एक यहूदी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। But that Jewish person replied, see you people, Jesus born and brought up in our country and he lived in our country, why you people are following him? ਅਤੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, पर तुसी लोग क्यों उस प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हो? तब उस यहूदी ने उससे पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही जाति का है और उसका जन्म और पालन पोषण यहीं पर हुआ, पर तुम लोग उसके क्यों पीछे चलते हो? So like this Saul also was mad after this, that no one should take the name of Jesus. आते सौलुस भी ऐसी गल दे पीछे पागल सी कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहिए। और ये शाऊल भी इसी बात के लिए जो पागल था कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना नहीं चाहिए। In Jerusalem he was destroying the churches. आते यरूशलेम दे विच वो कलीसियावां नु नाश करदा सी। यरूशलेम में वो कलीसियाओं को नाश करता था। Now he was having desire that in other country also, Syria also he will go, and if he will found any people those who take the name of Jesus, so I also will bring them back in Jerusalem and we will punish them. आते हुण उसने फैसला किया कि केवल यरूशलेम दे विच ही नहीं, मैं सगों दूजे देशां दे विच भी जावांगा। आते वो सीरिया दे विच गया आते उसने कहा कि जेकर दूजे देशां दे विच भी कोई प्रभु यीशु मसीह दा नाम लेंदा है ते मैं उसको वापस यरूशलेम विच ले आके दंड देवांगा। और उसने कहा कि सिर्फ यरूशलेम में नहीं, बाहर भी और भी जगहों पर मैं जाके देखूंगा। और उसने वो सीरिया में गया और उसने सोचा कि अगर सीरिया में भी कोई मसीह का नाम लेने वाला होगा मैं उसे यरूशलेम में लेकर आकर उसे दंड दूंगा। So while he was going on the way, then great light was shone upon around him and he fallen down and he heard the voice. आते जादू जा रहा सी तां रस्ते दे विच एक बहुत तेज रोशनी उसके उत्ते चमकी आते वो पुंजे डिग पिया। और जब वो जा रहा था एक बहुत बड़ी ज्योति उस पर चमकी और वो नीचे गिर गया। And he heard this voice that Saul, Saul, why you are persecuting me? तां उसने ये आवाज सुनी, हे सौलुस तू मैनू क्यों सतांदा है? तब उसने ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? And he said, who are thou, Lord? आते उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? तब उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. आते प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हाँ जिन्हों तू सतांदा है। तब उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। Lord Jesus Christ told, it is hard for thee to kick against the prick. प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरे लिए प्रैण दी आर उते लत मारनी औखी है। तब उस प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि कांटों पर जो है लात मारना मुश्किल है। So when the light was shone around him, he fallen down and he became blind. आते जब तेज रोशनी उसके उत्ते चमकी वो पुंजे डिग गया आते उसकी नजर चली गई। जब उसने उस पर बहुत बड़ी ज्योति चमकी वो नीचे गिर गया और उसकी आंखों की दृष्टि चली गई। Now he was not knowing what to do, and then people only they took him by hand as he was told, you go to Damascus, so he went there.
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ दमिश्क ਵਿੱਚ जा। और जो उसे पता नहीं लगा कि क्या करना है, पर उसके साथ के लोगों ने उसका हाथ पकड़कर उसे चलाया, और जैसे उसे कहा गया था कि तू दमिश्क को चला जा। In such condition, when such darkness is there, so now he might have lost all the hope also. He was not knowing what to do. So in such condition, sometimes people, they try to commit suicide. ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਤਮ हत्या ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। जैसे उसे पता नहीं लग रहा था कि क्या करना है, ऐसे उसने जो है अपने जीवन की आशा को उसने खो दिया होगा। इसी प्रकार से कई लोग अपने जीवन में आशा खोने से आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। In verse 6 it is written, and he trembling and astonished. 6वें वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। और 6 वचन में लिखा है कि वो उठ गया और वो हैरान हुआ, अचंभित हुआ और वो कम कबाने लगा। Now he was fearing. ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अब वो भयभीत हो रहा था। So remember that Lord Jesus Christ only have created us, and he have created us for him. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है, हमारी सृष्टि की है, उसने अपने लिए हमें बनाया है। So dear children of God, this is the truth, that we have been created by Jesus. Heavenly Father have created everything by through Jesus, and we all have been created by Jesus, and Jesus have created us for himself. ਆਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सृष्टि की है, हमें बनाया है, और पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी सृष्टि की है, और उसने हमारी जो सृष्टि की है अपने लिए किया है। So this is the great plan of God, and when we are cooperating with this, really we become very, very blessed people. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ये परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है या योजना है, और जब हम परमेश्वर की योजना को मानते हैं तो सच है कि हम लोग धन्य बन जाते हैं। So in the word of God we say many things. People, those who have opposed this plan, so they have suffered, and like this we can say that they all reduced to zero. ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ नाश हो गए। हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की योजना को रद्द किया, तुझ जाना, वो लोग बिल्कुल जो है वो खत्म हो गए, नाश हो गए। But people, those who have cooperated with this purpose of God, really they all they've accepted Jesus. Jesus Christ became their hero, and Lord Jesus Christ made them all heroes. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣੇ। और हम देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की योजना को मान लिया, उसे ग्रहण किया, अपने जीवन में अपना लिया, और प्रभु यीशु मसीह को अपना जो है हीरो मान लिया, वो उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने हीरो बनाया। So in this world so many people are in the problem. Sicknesses are there, so many curses are there, like this, no hope. The reason is this, because as this Paul, he was opposing Jesus, he was anti-Jesus. So if people are like this, they all are suffering. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुख कलेश में, पीड़ा में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सहयोग नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, इसीलिए वो जो है प्रभु यीशु मसीह वो कई प्रकार की पीड़ा में पड़े हैं। One place, one person, he wanted to kill himself. He hanged himself in the hook, and
luckily that rope was broken and this person came down on the floor. एक जगह ते एक व्यक्ति सी, उसने अपने आप ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ गई ਅਤੇ ਉਹ बच गया। एक व्यक्ति था जिसने अपने आप को मारना चाहा, आत्महत्या करना चाहा, उसने छत के साथ एक हुक को लटकाया और उसमें रस्सी बांधी, पर जब लटकने से पहले अचानक वो रस्सी टूट गई और वो बच गया। So this news is spread among all the relatives and all came, and one relative was a secret Christian. He was our believer, so that they forcibly they brought that person in one of our branch faith home of Bombay Center. ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। और ये बात उसके सारे संबंधियों में फैल गई और उनमें उसके संबंधियों में से एक गुप्त मसीह था और वो हमारा विश्वासी था। वो इस भाई को जो है हमारे एक जो शाखा विश्वास घर में किसी भी तरह जबरदस्ती लेकर आया। So this person, he was telling, I don't want to live, I want to kill myself. But the servant of God who was there, he prayed and little peace he got. ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੂੰ शांति मिली। और जो वो व्यक्ति था वो कहता था कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, पर जब उसे विश्वास घर में लेकर आए, वहाँ के विश्वास घर के परमेश्वर के सेवक ने जब प्रार्थना किया, उसको थोड़ी सी शांति मिली। His wife was crying. ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? No, his wife was crying. उसकी पत्नी रो रही थी। उसकी पत्नी रो रही थी। But that servant of God, he asked this person, can you open your mouth? Can you open your heart? Can you call upon Lord Jesus Christ? Lord Jesus Christ, come in my heart, come in my life, save me, O Jesus. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ काम कर। और जो है तब उस परमेश्वर के सेवक ने कहा, क्या तुम अपना मुंह खोल सकते हो, अपने हृदय को खोल सकते हो और ये कह सकते हो कि हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे हृदय में आ जा, तू मेरे जीवन में आ जा और मुझे बचा ले। So like this, that servant of God, he was telling, you call upon Lord Jesus Christ. You call upon Lord Jesus Christ. Oh Lord Jesus Christ, come in my heart. Save me, oh Jesus, I am a sinner. ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, मेरी जीवन ਨੂੰ बचा ਅਤੇ तू मेरी जान ਨੂੰ बचा। परमेश्वर का सेवक उस व्यक्ति को बार-बार कह रहा था कि तू प्रभु से ऐसा मुंह खोलकर कहे, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मैं एक पापी हूँ, मुझे बचा ले। So he obeyed the servant of God and he opened his mouth. He called Lord Jesus Christ. Oh Lord Jesus Christ, save me, I am a sinner, come in my life, come in my heart. उसने उस परमेश्वर के सेवक की आज्ञाकारी की, उसने अपना मुंह खोलिया ਅਤੇ उसने पुकार के किया कि हे प्रभु यीशु मेरे दिल विच आ, मेरे जीवन दे विच आ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ बचा। और जब तक उस व्यक्ति ने जो है परमेश्वर के सेवक के वचन की आज्ञाकारी की और वो बोलने लगा, हे प्रभु तो मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा और मुझे बचा ले। Remember that, dear children of God, if Jesus is not in your life, there is no safety. You have not been saved like this. परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ बचाव नहीं है। प्यारे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपके जीवन में कोई भी सुरक्षा नहीं है। That day, that person, he obeyed, he opened his mouth, he called Lord Jesus Christ, and Lord Jesus Christ came in his heart. उस व्यक्ति ने आज्ञाकारी की, उसने अपना मुंह खोलिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारिया ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय ਵਿੱਚ आए। और जो है उस व्यक्ति ने आज्ञाकारी किया, उसने दुहाई दिया, तब प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में, उसके जीवन में आया। Before you go from this meeting, so if so far you have not called Lord Jesus Christ, this is the day that you can call upon Lord Jesus Christ and he will come in your heart
and all the things will change. ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। हो सकता है कि आपने भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारा होगा, पर आज के शाम यही समय है आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, वो आपके जीवन में, आपके हृदय में आएगा और आपको बचाएगा। So when with the truth, this person was calling Jesus, so he told, yes, some peace have come in my life. ज्यादा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ इसने क्या, हाँ मेरे दिल में कुछ शांति आई है। जब वो व्यक्ति ऐसे प्रभु यीशु मसीह को दुहाई दे रहा था, पुकार रहा था, तब उसने कहा, हाँ मेरे हृदय में थोड़ी सी शांति आई है। I got some peace. I called Jesus, and now peace have come in my heart. मैं अपने अंदर कुछ शांति प्राप्त की थी, मैं प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ अपने अंदर पाया, हुन मेरे अंदर शांति आई है और मैंने अपने जीवन में थोड़ी सी शांति को प्राप्त किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, शांति मेरे जीवन में आई है। I will not kill myself. मैं अपने आप को नहीं मारांगा, अब मैं अपने आप को नहीं मारूंगा, I will not commit suicide. मैं आत्महत्या नहीं करांगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। So see that the servant of God told, can you remember all your mistake from your childhood, and can you say sorry to Jesus for all those things? आते परमेश्वर ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ कर दे। और तब परमेश्वर के सेवक ने कहा, उस व्यक्ति से कहा, क्या तू अपने बचपन से लेकर अभी तक की गलतियों को याद कर सकता है? अगर याद करता है तो जो प्रभु यीशु मसीह से कहे, मुझे इन सारी गलतियों के लिए क्षमा कर दे। So he told, yes, I can remember, I can ask pardon. So he was asking pardon from Jesus, all the mistakes from childhood he had committed, he was remembering and he was asking pardon. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ माफी ਮੰगਣ ਲੱਗਾ। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि हाँ मैं क्षमा मांग सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ। उसने अपनी सारी पुराने बचपन से लेकर सब बातों को स्मरण किया और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगा। It took only half an hour. इसनु लगभग आधा घंटा लगा। ये सारी बातों को सिर्फ आधा घंटा लगा। And he was telling, oh, now I got peace, I got joy, I got happiness. Oh, yes, things have changed. आते और फिर कहने लगा कि हुन मेरे दिल दे विच खुशी आई है, आनंद आया है, शांति आई है, आते मेरा दिल पूरी तरह बदल गया है। और तब वो कहने लगा कि हाँ अभी मेरे दिल में, मेरे हृदय में खुशी आ गई है, आनंद आ गया है, शांति आ गई है। See that within half an hour this person was in hell, and how through calling the name of Jesus he came out from the hell and he received all the heavenly blessings. आते किस तरह आधा घंटा पहला ये व्यक्ति नरक दे विच सी, आते प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ पुकारन तो बाद किस तरह ये धरती दे उत्ते नहीं तो स्वर्ग दे विच आ गया, आते इसका जीवन बदल गया, आते इसने स्वर्गीय वरता नु प्राप्त किया। आधा घंटा पहले जो वो व्यक्ति था वो नरक में दिखाई देता था, पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा वो स्वर्ग में दिखाई देने लगा, उसके जीवन में स्वर्गीय आशीषें आ गई। So remember, dear children of God, if Jesus in your life, so you are very, very blessed person, and you may be a zero, but Jesus can make you hero. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, याद रखो जेकर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे जीवन दे विच है तां तुसी बहुत ही एक मुबारक व्यक्ति हो। तुसी आज खाली या सकने या जीरो करके दिखाई देंदे होगे, पर प्रभु यीशु मसीह दी वसा दे नाल तुसी नायक या हीरो बन सकते हो। प्यारे पर प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आप जो है एक नरक में दिखाई देते होंगे, पर जब आप प्रभु को पुकारेंगे, आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, आप अपने जीवन में बिल्कुल जीरो होकर दिखाई देते होंगे, पर प्रभु का नाम लेने से आप हीरो बन जाएंगे। See that person, a worker in charge told me this thing happened. So he told how that person, he was zero, and see, by accepting Jesus, how all the things have changed, and like this he might have become a spiritual, with the blessings he might have become a hero.
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बदल गई ਤੇ परमेश्वर ने उसने बरकत दी थी। तब उस परमेश्वर के सेवक ने मुझे बताया कि कैसे वो व्यक्ति जो है बिल्कुल ही खाली था, बिल्कुल जीरो था, पर कुछ ही समय में वो कैसा उसका जीवन बदल गया, उसने स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर लिया और वो हीरो बन गया। Any soul, whether you are boy or girl, you are old person or young person, you are father or mother, so if Jesus is not there, remember you are zero. But if you accept Lord Jesus Christ, so if you accept Lord Jesus Christ, your hero, He himself make you a hero. आते याद रखो, तुसी कोई तो ये जानते हो, तुसी कोई लड़का हो सकते हो, लड़की हो सकते हो, तुसी बुजुर्ग हो सकते हो, तुसी जवान हो सकते हो, तुसी माता पिता हो सकते हो, पर तुसी सखणे हो सकते हो, जीरो हो सकते हो, पर जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ स्वीकार करोगे तो तुसी एक मुबारक व्यक्ति बन सकते हो। आते तुसी ओ प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦਾ नायक बन सकता है, आते तुसी ਉਹਦੇ द्वारा नायक बन सकते हो। प्यारे परमेश्वर के लोग स्मरण रखें, आप लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हो, बुजुर्ग हो सकते हो, पर आप अपने जीवन में खाली हो सकते हो, जीरो हो सकते हो, पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसको मान लेंगे, अपने जीवन में लेकर आएंगे, आप एक हीरो बन सकते हो। So without Jesus, family is in zero, but if they accept Jesus, so they will receive the blessing. Any institution, anything, any company, if they have Jesus, really they are having blessing. Even countries also, they have accepted Jesus, they are hero. So those countries have become heroes. कोई भी देश हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई परिवार हो सकता है, जेकर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, जेकर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो हीरो बन सकते हैं। कोई देश हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पर हो सकता है कि वो खाली होगा, जीरो दिखाई देता होगा। कोई परिवार हो सकता है, पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मान लोगे, उसे अपने जीवन में ग्रहण करोगे, आप हीरो बन सकते हो। So Lord Jesus Christ is our hero. I have seen one person, one officer, and Lord Jesus Christ was his hero. So he was following Lord Jesus Christ, and in this institution that person became a hero. आते प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति अधिकारी था, उसने जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है ग्रहण किया, अपना हीरो बनाया। हाँ, जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ स्वीकार करोगे तो तुसी हीरो बन सकते हो। So like this in this world, so without Jesus, remember, no hope, no blessing, no healing, no life, no eternal life. मैं एक संस्था दे एक व्यक्ति ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ स्वीकार ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। प्रभु यीशु मसीह तो बिना असि कुछ भी नहीं है, असि जीरो है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो कि बिल्कुल एक संस्था में छोटा सा काम करता था, वो प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया, उसके पीछे चलने लगा, तो वही उस संस्था का जो एक बड़ा प्रधान बनकर दिखाई दिया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आप जीरो होने से भी आप हीरो होकर दिखाई देंगे। This is Saul. Later on he became Saint Paul. He was against Jesus. So that's why he lost the hope, and now he lost the blessings, and now he was not knowing what to do. But anyhow, by the grace of God, he was calling, Lord, who art thou? आते सौलुस, अब ये पौलुस जो कि पहला सौलुस सी, जो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं मानदा सी, जो प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ किस तरह ये हीरो बन गया ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ आ गईਆਂ। ये शाऊल जो है एक खाली होकर, एक बिल्कुल जो है जीरो होकर दिखाई देता था, पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसे जान लिया, तो वो एक हीरो होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला होकर दिखाई दिया। So Lord Jesus Christ is our Lord, and He is our Master, He is our Creator. So all we are
his servants. We all should be his servants. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है और हम सब लोग उसके गुलाम है या दास होकर दिखाई देते हैं। So if anything you want to do, if you want to take the name, you take the name of Jesus. If you want to worship, you worship Jesus. If you want to live, you live for Jesus. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਭ कुछ करो। आप अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लें। अगर आप किसी को पुकारना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। अगर जीना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। So when he called, Lord, you tell me who art thou? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, जब उसने कहा कि हे प्रभु तू कौन है, Then Lord Jesus Christ told, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। So he is our Lord and Master. We should be his servants. But if we do anything against him, if we are not fulfilling his purpose in our life, remember we are persecuting Jesus. ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। वो हमारा स्वामी है, वो हम उसके दास हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की योजना को या उसको नहीं मानते, उसके आज्ञाकारी नहीं करते तो हम उसे सताते हैं। So this Paul, he was told, you go to the city, you go to Damascus, and there it will be told what you should do. ਅਤੇ ਇਸ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ कि तू ਕੀ करना है। तब शाऊल को या पौलुस को बताया गया तो नगर में जा, दमिश्क में जा, वहां तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। So 3 days he was without sight, and he did not eat anything, he did not drink anything, and like this he was asking pardon, he was calling Jesus. ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ वो ਸੀ। 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया, और 3 दिन वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता रहा, उससे क्षमा मांगता रहा। So this time have been given, you can again and again you can call upon Jesus, and Jesus will bless you, he will deal with you, he will talk with you. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। और ये समय आपको दिया गया है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, वो आपके साथ मुलाकात करेगा, आपके साथ व्यवहार करेगा, आपसे बातें करेगा। So see that when this is Saul, he took fasting, and like these 3 days he was asking pardon, and he was crying before Jesus. So he sent his servant that he told what Jesus wants from you. ਅਤੇ ਸੌਲਸ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ करना है। तब जो ये पौलुस जो था वो उसने 3 दिन का उपवास रखा, उसने ना खाया ना पिया, और 3 दिन तक वो प्रभु से क्षमा मांगता रहा। तब प्रभु ने अपने सेवक को भेज कर बताया कि उसे क्या करना है। So Acts of Apostles chapter 22 and verse starting from 6 onwards, all these things are in detail. पर रसूलां दे करता 22 अध्याय 6 वचन तो आगे लाके इसके बारे सारी व्याख्या करके दसी गई है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 6 वचन से आगे तक इसके बारे में बताया गया है। Jesus told you go to Damascus. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू दमिश्क में जा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दमिश्क में जा। There it will be told what you should do, what is appointed for you. आते उथे तेनू दस्या जाएगा कि तू की करना है अते तेरा काम की है, और तुझे वहाँ बताया जाएगा तुझे क्या करना है और तेरा क्या काम है। So one disciple Ananias, he went there and he prayed for him. First he received the sight. आते एक चेला हनन्या नाम दा उथे गया, उसने उसके लिए प्रार्थना की थी अते सब तो पहला उसने नजर प्राप्त की थी। और उस तब एक चेला जिसका नाम हनन्या था वो गया, उसने उसके लिए प्रार्थना किया, सबसे पहले उसने दृष्टि को प्राप्त किया। And he told that now this is the time that you should wash your sins and you take water baptism. आते उथे उसनु ये दस्या गया कि हुणे समय कि तू अपने पाप तो सुट ते पानी दा बपतिस्मा ले। तब उसे ये बताया गया कि यही समय है, उठ बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल।
See, Jesus told what you should do, what is appointed for you. It will be told to you. You go to Damascus. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उत्थे तेनू दस्या जाएगा तेरे लिए की ठहराया गया, इसलिए तू उठ ते दमिश्क नु जा। इसका प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है, तेरे लिए क्या ठहराया गया है, इसलिए तू उठ और दमिश्क को जा। So all the things Lord Jesus Christ have not told to him what he should do, but all the necessary things, whatsoever that was necessary, Lord Jesus Christ spoken to this soul. प्रभु यीशु मसीह ने उथे सालुस नु सारा कुछ नहीं दसिया, उसने जो कुछ भी करना सी, पर उसनु जो दसना बहुत जरूरी सी ओना उसनु दसिया गया। और परमेश्वर ने जो है पौलुस को सारी बातें नहीं बताया, पर जो आवश्यक बातें थी सिर्फ वही बातें बताया। First Lord Jesus Christ rebuked him. He told Saul, you are persecuting me and it is hard for thee to kick against the pricks. पहला प्रभु यीशु मसीह ने उसनु डांटिया कि हे सालुस तू मैनू सतांदा है, तेरे लिए प्रैन दी आर उते लत मारनी औखी है। सबसे पहले उसने पौलुस को डांटा कि तू मुझे सताता है और कांटों को टांग बनना तेरे अच्छा नहीं। Then he sent, when he went to Damascus, he sent this disciple and he told what Jesus wants from you. आते जादो दमिश्क गया अते उथे जाके उथे ओनु देख चेले दे द्वारा दस्या गया कि प्रभु यीशु मसीह तेरे तो की चाहते हैं। जब वो दमिश्क में पहुंचा तभी एक चेले के द्वारा उसे बताया गया कि तुझे क्यों वहां पर क्या करना है। This Ananias, he was telling that Jesus who had met you on the way, he sent me to tell all these things to you. आते हना ने कहने क्या कि प्रभु यीशु मसीह जिसकी मुलाकात तेरे नाल रास्ते दे विच होई सी उसने मैनू इथे तेरे कोल भेजा है। और तब हनन्याह ने कहा कि जिसकी मुलाकात तेरे साथ रास्ते में हुई थी उसने मुझे तेरे पास भेजा है। So if you call upon Lord Jesus Christ, if you surrender your life in his hand, so servants of God have been sent and they will tell what Jesus wants from you. जेकर तुसी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह दे लई समर्पित करोगे, उसनु पुकारोगे, तां परमेश्वर दे सेवक तुहाडे कोल भेजे जाणगे आदि ओ तुहानू दसणगे कि तुसी की करना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी योजना को जानना चाहते हो तो परमेश्वर के सेवक आपके पास आएंगे और वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। You have come in the convention, you have come to Jesus. तुसी इथे सम्मेलन विच आए हो, मतलब तुसी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए हो। आप सम्मेलन में आए हो, इसका अर्थ है कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो। You call upon the name of Jesus again and again, and he has sent his servants, he sent his apostles, and they can tell you what Jesus wants from you. तो उसी बार बार प्रभु यीशु मसीह दे नाम नु पुकारो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकां नु अपने रसूलां नु तुहाडे कोल भेजिया अते ओ तुहानू दसणगे कि तुसी प्रभु यीशु मसीह दे लई की करना है। और जो है आप बार बार यीशु के नाम को पुकारे, परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को, अपने परमेश्वर के सेवकों को आपके पास भेजा है, वो आपको बताएंगे कि आपको प्रभु के लिए क्या करना है। So he did not argue to this Ananias, and he accepted, yes, Jesus have sent you, and he obeyed. And whatsoever the word of God, will of God told by that servant, he obeyed that, he fulfilled that. आते अब सालुस ने उससे के कोई सवाल नहीं किया, सगों उसने मान लिया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने तेनू भेजा। आते उसने जो कुछ परमेश्वर की सलाह, जो परमेश्वर का वचन, आते जो कुछ भी किया उसने मन के उसी तरह किया। तब जो पौलुस था उसने जो है उसकी किसी भी बात का आज्ञाकारी नहीं किया, उसका अविरोध नहीं किया, पर उसने मान लिया कि तुझे प्रभु ने भेजा है और उसने उसकी बात की आज्ञाकारी किया। So dear children of God, Lord Jesus Christ is our hero. We should follow him. Whatsoever he have done, we also should do. This is the will of God. He wants from us. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह साडा नायक है, असी उसदे पैरोकार हां अते जो कुछ प्रभु यीशु मसीह तुहाडे तो चाहता है वो सानू उसदे लिए करना चाहिए। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है वो हीरो है, हमें उसके पीछे चलना चाहिए और जो वो कहता है हमें वो करना चाहिए। See, it was not necessary for Lord Jesus Christ, because he was not having any sin. He was not knowing any sin. He did not commit any sin. So it was not for him that he should take water baptism, but to teach you that you should follow Jesus. So he took water baptism.
परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह दे लई कोई ये जरूरी नहीं सी कि वह पानी दा बपतिस्मा लेंदा, क्योंकि उसने पाप नूं जानिया नहीं सी, उसदे विच कोई पाप नहीं सी, उसने कोई पाप कीता नहीं सी, पर तुहानू ते मैनू सिखाउण दे लई उसने ये पानी दा बपतिस्मा लिया। प्यारे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञान था, उसने कोई पाप न, वो जानता नहीं था, पर मुझे और आपको जो है एक नमूना देने के लिए उसने पानी का बपतिस्मा लिया। One person, he was having long hair. People asked, why you are keeping so long hair? He told, because Jesus was having long hair, that's why I am also having long hair. एक व्यक्ति ने इस तरह लंबे बाल रखे हुए सन, ते किसी ने उसने पूछा कि तुसी इस तरह इन्ने लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? तो उसने क्या, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे लंबे बाल से, इस करके मैं लंबे बाल रखे हुए हैं। एक व्यक्ति ने, उसके बाल लंबे थे, उससे किसी ने पूछा तूने क्यों लंबे बाल रखे हैं? उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के बाल लंबे थे इसलिए मैंने रखे हैं। But according to the word of God, whatsoever Jesus have done, all the things, and in the word of God, you should do, you should follow, you should fulfill all those things. पर परमेश्वर दे वचन दे अनुसार जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो कुछ परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया होया है, तुहानू उसनू मनना चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए है, ते उसके अनुसार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो कुछ लिखा हुआ है आपको उसको मानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। See how Lord Jesus Christ took water baptism. Those who have not taken water baptism, if you want that Jesus should become your hero, you also should take water baptism. जिन्होंने अजे तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तुहानू पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। वो सारे जेड़े चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का नायक बनना चाहिए, तुहानू भी पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आप पानी का बपतिस्मा ले लें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का हीरो बन जाए तो आपको पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। So Lord Jesus Christ have not taken water baptism from anyone. Especially this is John was sent that he will give baptism to Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने किसी होर तो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आते खास करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसलिए भेजा गया सी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से और से पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के पानी का बपतिस्मा दे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी से पानी का बपतिस्मा लिया। See the life of John the Baptist, how he was a dedicated person, and how that he was living by faith, and like this he was doing all the will of God. From that person only Lord Jesus Christ took water baptism. देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दा जीवन किस तरह दा सी, उसका जीवन पूरी तरह समर्पित सी, आते वो पूरा एक त्याग वाला जीवन व्यतीत करदा सी, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास के नाल जीवन व्यतीत करदा सी। उसके कोलों प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। प्रभु जो पानी का बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन बिल्कुल ही अलग था, उसका त्याग का जीवन था, मखसूसियत का जीवन था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी के हाथों से पानी का बपतिस्मा लिया। See that Lord Jesus Christ told this John the Baptist, those who have been born by woman, among them John the Baptist is the greatest. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे बारे क्या, वो सारे जड़े स्त्रियां तो जन्मे हन, यूहन्ना दा बपतिस्मा देने वाला उन्हां सबना तो वड्डा है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा, स्त्रियों में से जन्मे सारे व्यक्ति में से ये बड़ा है। He was telling, Jesus was telling to the people. प्रभु यीशु मसीह लोकां नु कह रहे सन, प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को बता रहे थे। So why this John the Baptist is so great? He have not done any wonder, he have not done any like these things, that he have done only that the work of sanctification he was doing. आते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना महान क्यों सी, उसने कोई अद्भुत काम नहीं किया सी, आते उसने केवल एक पवित्रता दा या शुद्धता दा काम किया सी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों इतना प्रसिद्ध था? उसने कोई अचंभे के काम नहीं किए, पर वो जो है एक पवित्रता ही नहीं तो शुद्धता का काम कर रहा था। He was rebuking when these Pharisees, Sadducees came. He told, "Oh generation of vipers, who told you to save yourself from the coming wrath?" आते ओ लोकां नु डांट दिया सी। जदों ये फरीसी ते सदूकी उसदे कोल आया ते उसने उन्हां नु कहा, हे सप्पां दे बच्चों, तुहानू आउण वाले न्याय तो बचन दे लई किने कहा? वो जो है लोगों को डांट छिड़क रहा था। जब सदूकी और फरीसी उसके पास आए तब उसने उनसे कहा, हे सांबों की संतान, तुम्हें किसने आने वाले न्याय के बारे में बताया है? So he did not, John the Baptist, he have not done any wonderful work,
But this was the greatest work in the sight of God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई अद्भुत करते चमत्कार काम नहीं कीते, पर उसका ये शुद्धता का काम परमेश्वर की निगाह दे विच सब तो महान सी ते बड़ा सी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई अचंभित या चमत्कार नहीं किए, पर उसका जो ये शुद्धता के काम थे वो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में बहुत महान थे। So he went to the king, and king was having his brother wife, and this John the Baptist, he told this is wrong. Though he was king, he rebuked the king also, king, you are doing wrong thing. आते और राजे दी कोल गया, उस राजे ने अपने भरा दी पत्नी नु रखिया होया सी, बेशक वो राजा सी, उसने कोलों डरिया नहीं, उसने क्या, हे राजा तू एक गलत कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। और वो राजा के पास गया, राजा ने अपने भाई की पत्नी को रखा हुआ था, उसने राजा को जो लहरी से कहा कि तू ये जो काम कर रहा है ये गलत है। So that's why John the Baptist, he was greatest in the sight of God. इस करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की निगाह दे विच सब तो महान से। इस करके जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महान था। Like this is John the Baptist, servants of God, those who are dedicated and those who are doing this work of sanctification. So those who are following the doctrine, so from their hand you should take the right water baptism. इस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दी तरह जिवें वो समर्पित सी, जेड़े इसी तरह परमेश्वर दे त्यागी सेवक हन, जेड़े परमेश्वर दी इच्छा करदे हन, जेड़े विश्वास वाला जीवन व्यतीत करदे हन, उन्हां दे हत्थों तुहानू पानी दा बपतिस्मा लेना चाहिए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक मखसूसियत का जीवन गुजारता था, इसी प्रकार से आपको भी उन सेवकों और प्रेरितों से हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए जो प्रभु के पीछे चलते हैं, त्याग का जीवन गुजारते हैं। So word of God says that when God created Adam and Eve, they were without sin. परमेश्वर का वचन कहते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की थी तां पाप रहित सन। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया वो पाप से रहित थे, उनमें पाप नहीं था। But by disobeying, when God told you should not eat the fruit, they disobeyed God, and because of that sin entered in their body. पर अनाज्ञाकारी दी वजह करके जिस फल तो परमेश्वर ने उन्होंने खान तो मना कीता सी, उन्होंने वो फल खादा, अनाज्ञाकारी दी वजह करके पाप उन्होंने जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी की, जिस फल को खाने से प्रभु ने मना किया था वही फल खाया, और उस अनाज्ञाकारी करने के कारण उनके जीवन में पाप आ गया। Romans chapter 5 and verse 12 it is written that by one man sin entered and spread in all the people. रोमियो दी पत्री 5 अध्याय 12 वचन दे विच लिखिया है कि एक मनुख दे द्वारा पाप जगत विच आया अते वो सारे मनुखां विच फैल गया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन में लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और उस जो है सब मनुष्यों में फैल गया। So that's why all are sinners. They are having sinful body, whether you are a American, whether you are a Chinese, whether you are a Korean, or you are a Brahmin, or this and that. इस करके सबना ने पाप किया, पाप सब दे जीवन दे विच प्रवेश कर गया। इस करके भावें तुसी अमरीकी हो, चाइनीज हो, भावें तुसी ब्राह्मण हो, या किसी भी देश या किसी भाषा किसी भी धर्म के नाल संबंधित क्यों ना हो, और जो है आज इस करके जो है सबने पाप किया है, सबने पाप में जन्म लिया, चाहे आप अमेरिकन हो या चाइनीज हो या किसी भी ब्राह्मण हो या कोई भी क्यों ना हो, सबने पाप किया है। So because of that everyone got this sinful body. This body is the body of death. इस करके सब दे कोल एक पाप वाला शरीर है, एक मौत का शरीर है। इस करके सबके पास ये पाप का शरीर है, मृत्यु का शरीर है। So what is there in this body? इस शरीर दे विच की है? ये शरीर में, इस देह में क्या है? We can see in Romans chapter 7 and verse 23. ਅਸੀਂ रोमियो दी पत्री 7 अध्याय 23 वचन दे विच देख सकते हैं। हम इसको जो है रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 23 वचन में देखते हैं। पर मैं अपने अंगां विच एक होर कानून भी देखदा हां जो मेरी बुद्ध दे कानून नाल लड़दा है ते मैनू उस पाप दे कानून दे जो मेरे अंगां विच है बंधन विच लियाउंदा है। So Romans chapter 7 and verse 23 it is written that in my body, in my members, always war is there.
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ युद्ध चलता है। और जो है संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने देह में, अपने अंगों में एक प्रकार का युद्ध देखता हूँ जो हमेशा लड़ता रहता है। So in every body, this sin is the master, sin is the king, sin is the ruler, or sin is the prime minister. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ शासक है, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾलिक है। और जो है ये देह के ऊपर जो है पाप जो है वो राज्य करता है, वो हरेक के शरीर के ऊपर उसका मालिक है, उसका अधिकारी है, उसका प्रभु है। So one place we went to one leader and we wanted that he should do something, and he told, now our government is not there, so we cannot help you. ਆਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ कि देखो ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ नहीं है, इस करके ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम एक जो है नेता के पास गए, उससे हम चाहते थे कि वो हमारे लिए कुछ करे, पर उसने कहा कि अब हमारी सरकार नहीं है। So previously when God created Adam and Eve, in there that government of God was there. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब उस समय जो है परमेश्वर का सरकार था। So law of life was the ruler. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। वह जीवन की जो व्यवस्था थी वह राज्य करती थी। But because that Adam and Eve, they were created with the free will, so that's why they have used their free will, and like this the whole government have changed. ਆਦਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੈ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ बैठे। और क्योंकि आदम और हवा जो है स्वेच्छा के साथ जो है उनको सृष्टि किया गया, इस करके स्वेच्छा के कारण उन्होंने अपनी सरकार को बदल लिया। So one place convention was going on. One Christian person, he wrote one slip, and in that slip he asked the question, if Adam and Eve, they committed wrong and sin had come, why God have not killed them and created another Adam and Eve? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਦਮ या दूजे इंसान ਨੂੰ क्यों नहीं रच लिया। और जो एक जगह एक ऐसे ही सम्मेलन चल रहा था, तब किसी व्यक्ति ने एक पेपर पर जो है ऐसे सवाल करके लिखा कि अगर आदम और हवा ने पाप किया था, गलती किया था, तो परमेश्वर ने उनको मारकर दूसरे एक नया आदम और हवा की सृष्टि क्यों नहीं की। So in that evening, one preacher, he was preaching, and that subject was the same. He was not knowing that anyone asking question like this, and in his spirit, that servant of God, he replied, if God have created 100 pairs of Adam and Eve, he would have given them free will. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 100 ਆਦਮ ਅਤੇ 100 ਹਵਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। और तब उस एक प्रचारक जो शाम को प्रचार कर रहा था, उसको नहीं पता था कि ऐसे किसी व्यक्ति ने ऐसे सवाल किया है, प्रश्न किया है, पर जब वो प्रचार कर रहा था उसने बोला अगर परमेश्वर ऐसे 100 आदम और हवा के जोड़े बनाएगा, उनको 100 को ही जो है स्वेच्छा देगा। So see in John the Gospel chapter 10 and verse 17 and 18, Lord Jesus Christ was telling why Father is loving me. He is loving me because that I am giving my life. No one is forcing me that I should give my life. I am happily, joyfully I am giving my life. यूहन्ना दी इंजील 10:17 ਤੇ 18 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ सकदा ਤੇ वापस भी ले सकदा। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना प्राण देता हूँ, और ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती या किसी अधिकार से इसे देता हूँ, पर मैं अपना प्राण ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। So as God is having free will, so same manner he have created us in his own image,
and likeness. So he gave Adam and Eve this free will. Because of that free will, that Adam and Eve, they have used their free will and they ate that fruit, and sin entered in the world. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ फल ਨੂੰ खाधा। और जो है आदम और हवा का परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने उनको खुद की मर्जी या स्वे इच्छा दिया, पर आदम और हवा ने उस स्वे इच्छा का गलत इस्तेमाल किया। So when God created Adam and Eve, that time that law of life was there, government of law of life was there, but when sin entered, sin captured this law of life government, and sin became the ruler. ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब जो है जीवन की व्यवस्था काम करती थी। जब आदम और हवा ने अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया, तब वो जो है शैतान ने उनकी स्वेच्छा को ले लिया और अपनी सरकार को बना दिया। So that's why we have read just now in Romans chapter 7 and verse 23, always this war is going on, that this sometime we want to do good, but because government is like this, so they are telling no, you cannot pray, you cannot read Bible, you cannot take the name of God, you cannot do good, you cannot take fast. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 7 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ प्रार्थना नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ रोजा नहीं रख सकते, ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की इच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो है शरीर के ऊपर जो है वो जीवन की व्यवस्था का जो सरकार है वो शैतान की सरकार काम करती है। इसलिए अगर हम अच्छा करना चाहे, रोजा रखना चाहे, प्रार्थना करना चाहे या कुछ भी करना चाहे, स्तुति करना चाहे, पर जो ये सरकार है, शैतान की सरकार है, वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। So that's why it is written John the Gospel chapter 8 and verse 32, that if anyone is committing sin, that he is the servant of sin. ਇਸੇ ਕਰਕੇ यूहन्ना ਦੀ इंजील 8 ਅਧਿਆਇ 32 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ है। इसी करके यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा है, जो पाप करता है वो उसका दास है। Sin is king. पाप राजा है। पाप राजा है। Sin is ruler. पाप एक शासक है। पाप जो है राज्य करने वाला है। So that nobody can fight with this sin, this power of sin, by their own this fleshly power or wisdom. आदि कोई भी अपनी शारीरिक ताकत या बुद्धि दे नाल इस पाप दी शक्ति दे नाल युद्ध नहीं कर सकता या उसके उत्ते फतह नहीं पा सकता। कोई भी अपने सामर्थ के द्वारा या अपने ताकत के द्वारा, बल के द्वारा ये जो पाप है उसके साथ लड़ नहीं सकता है। So this yoga abhyas cannot help you. आते योगाभ्यास थोड़ी सहायता नहीं कर सकता। यहाँ तक कि योगा भी आपका सहायता नहीं कर सकता है। If you are not eating egg or flesh, so those things also cannot help you. जे क्या तुसी मांस अंडा नहीं खाते तो ये गल्ला भी थोड़ी सहायता नहीं कर सकती। अगर आप अंडा या मांस नहीं खाते तो ये बातें भी आपकी सहायता नहीं, मदद नहीं कर सकता है। So power of sin is so great. इस करके पाप की शक्ति इतनी बड़ी है। इस करके पाप की सामर्थ इतनी बड़ी है। So that's why Lord Jesus Christ told John the Gospel chapter 8, if Son of God will deliver you, then only you will have the true deliverance. आते इसी करके यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय 35 वचन दे विच 36 वचन दे विच लिखा है, इसलिए जे पुत्र तुहानू आजाद करे तो ठीक तुसी आजाद होवोगे। इसी करके यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। So how that God have delivered us? किस तरह परमेश्वर ने सानू छुटकारा दिता है? कैसे परमेश्वर हमें छुटकारा देता है? In Romans chapter 6 and verse 22 we are reading. रोमियो दी पत्री 6 अध्याय 22 वचन दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 22 वचन में पढ़ते हैं। पर हुण तुसां पाप तो छुट के अते परमेश्वर दे दास बन के पवित्रताई दे लई अपना फल अते ओड़क नूं सदीपक जीवन पाउंदे हो।
परंतु अब पाप के स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। So now that Lord Jesus Christ have delivered us from this sin. आते ਹੁਣ प्रभु यीशु मसीह ने सानू इस पाप तो छुड़ाया। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस पाप से छुड़ाया है। So that's why it is written, but now being made free from sin and become servant to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. पर हुण तुसां पाप तो छुट के ते परमेश्वर दे दास बन के पवित्रताई दे लिए अपना फल अते ओढ़ नो सदीपक जीवन पाउंदे हो। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। So this is the great thing that God have done, that everyone should become free from sin and all should become the servant to God. इस करके परमेश्वर ने बहुत बड़ा पाप किया है कि सारे पाप तो रहित बनने चाहिए अते परमेश्वर के दास बनने चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने बहुत ही महान कार्य किया है कि हम सब लोग पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बने। So God have done the great thing that we all should be free from sin and we all should become the servant of, not the servant of sin but servant to God. इस करके परमेश्वर ने महान काम किया है कि ऐसी पाप तो छुट जाने चाहिए, पाप तो आजाद होने चाहिए अते ऐसी दास बनने चाहिए, पर पाप दे दास नहीं सगों परमेश्वर दे दास बनने चाहिए। परमेश्वर ने महान कार्य किया कि पाप से हमें स्वतंत्र करके हमें दास बनाया है, पर पाप का दास नहीं पर परमेश्वर के दास बनाता है। So what is the result? उसका नतीजा की है और उसका रिजल्ट क्या है? Ye have your fruit unto holiness. आते ए पवित्रताई दे लिए तोड़ा फल है और वो जो फल है वो पवित्रताई का फल है। Your behavior will become very holy. तोड़ा वतीरा बहुत ही पवित्र हो जाएगा, आपका व्यवहार पवित्र हो जाएगा। Oh, this boy have become devta. ए लड़का देवता बन गया, ये लड़का एक देवता बन गया है। This girl was naughty but now she have become a goddess. आते ये लड़की बहुत ही शरारती सी पर उन्हें देवी बन गई है। ये लड़की बहुत ही शरारती थी पर अब देवी बन गई है। So when you will be free from sin, you will become holy. जब तुसी पाप तो रहित हो जाओगे तो तुसी पवित्र हो जाओगे। जब आप पाप से स्वतंत्र हो जाओगे आप पवित्र हो जाओगे। At the end you will receive the everlasting life. आते अंत में तुसी सदीपक जीवन प्राप्त करोगे और अंत में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। So how God have set us free from sin? परमेश्वर ने किस तरह सानू पाप तो रहित किया, परमेश्वर ने कैसे हमें पाप से छुड़ाया है। Romans chapter 6 and verse 6, this is the answer. रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 वचन इसका जवाब है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 वचन जो है उसका उत्तर है। Read this verse, Romans chapter 6 verse 6. क्यों जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਭਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पाप की गुलामी ना करिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे से पाप के दास्तव में ना रहें। See, this body of sin have been destroyed. देखो ये पाप का शरीर नाश किया गया, पाप का शरीर जो है वो नाश किया गया है। So that's why Lord Jesus Christ would have died by so many other deaths, but why he have chosen this cross of the death on the cross, that body of sin should be crucified on cross. देखो प्रभु यीशु मसीह किसी होर तरीके दे नाल मार सकदे सन, किसी होर किस्म दी मौत मार सकदे सन, पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस सलीब दी मौत नु चुनिया ताकि ये पाप दा शरीर जो है ये नाश किया जाए। प्रभु यीशु मसीह किसी और प्रकार की मृत्यु को ले सकते थे, पर क्यों उसने क्रूस की मृत्यु को ही चुना ताकि ये पाप का शरीर है वो क्रूस के ऊपर मर सके। So this sinful body have been, those who accept Lord Jesus, you was crucified for me, your body of sin will be crucified on cross. आते जेड़े ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी क्रूस के उत्ते मारे गए,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ही क्रूस पर मर गया, उनका जो पाप भरा शरीर है वो क्रूस के ऊपर चढ़ जाता है। So one type of death is coming in this sinful body. Death is coming. This sinful body is dying, destroying. ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पाप भरे इस शरीर में जो एक प्रकार की मृत्यु आती है वो प्रतिदिन मरता है और नाश होता रहता है। So like this is that God have delivered us from this sinful body. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें इस पाप भरी देह से छुटकारा दिया है। In Romans chapter 8 also we are seeing that. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। रोमियो के पत्री 8 अध्याय में देखते हैं, In verse 3 it is written. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, So that these last 10 commandments, they were very weak before this sin. ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਹ ਜੋ 10 ਹੁਕਮ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਬਲ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। पुराने नियम के जो 10 व्यवस्था थी वो शरीर के सामने बहुत ही दुर्बल होकर दिखाई देती थी। So they were knowing not to kill, but they were killing. आज वो जानते सी कि नहीं हत्या करनी चाहिए, पर फिर भी वो करते सन। और वो जानते थे कि किसी की हत्या नहीं करना, पर वो हत्या करते थे Because sin was forcing them. क्योंकि पाप उन्होंने मजबूर करता सी। क्योंकि पाप ही उन्हें जो है मजबूर करता था। Sin government was there. क्योंकि पाप दी सरकार सी। क्योंकि इस पाप का सरकार वहाँ था। This sin government coming and arresting them. ये पाप दी सरकार आके उन्होंने गिरफ्तार कर लेंदी सी। और ये पाप की सरकार उनको आके पकड़ लेती थी, Forcing them, you do this work, you do this work. आते उन्होंने उत्ते जबरदस्ती करती सी कि तुसी ये करो ये करो। और उनको ये मजबूर विवश करता था कि आप ये करें ये करें। So that's why in Romans chapter 7 and verse 19 it is written, I wanted to do good, but I cannot do because some force is there forcing me to do the evil. आते रोमिया दी पत्री 7 अध्याय 19 वचन दे विच लिखा है कि जेड़ी भलाई मैं करना चाहता हाँ वो मैं नहीं करता, सगों जेड़ी बुराई मैं नहीं चाहता सोई करदा। एक पाप दी शरह जेड़ी मैनू मजबूर कर दिया करन दे रही। और क्योंकि रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ, क्योंकि पाप की व्यवस्था मुझे विवश करती है। So that's why in Romans chapter 8 verse 3 it is written, now that Lord Jesus Christ took the form of in the likeness of the sinful body, and he called all the sin in this body and punished. ऐसे करके रोमिया दी पत्री 8 अध्याय 3 वचन दे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने साडे समान इस पाप दे शरीर नु धारण कीता आते उसने इस मौत नु किया कि ओ मेरे अंदर आए आते इस पाप दा नाश इस पाप के शरीर दे विचों मर जाए। रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह है वो पाप में शरीर की समानता में आकर पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दिया। So though it will not apply for all, only for those who are accepting Lord Jesus Christ died for me on the cross, he was buried and he was rose again on the third day. ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी क्रूस के उत्ते मर के दफनाए गए थे, तीसरे दिन जी उठे। ये सब लोगों के ऊपर ये बात नहीं चलती है, पर वो लोग जो ये बात को विश्वास करते हैं, मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। So I was hearing that one servant of God, when a believer was asking, I have taken water baptism last many years, no anointing of Holy Spirit is coming upon me. And then that servant of God asked, have you confessed that Jesus Christ, he was buried and rose again on the third day?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ No, I have not received anointing of Holy Spirit. ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ स्वीकार कीते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, दफनाए गए थे, तीसरे दिन जी उठे। तब मैं एक बात सुन रहा था कि परमेश्वर का सेवक जो एक विश्वासी है वो ऐसे कह रहा था, मैंने पानी का बपतिस्मा बहुत देर से लिया है पर अभी तक मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला। तब परमेश्वर के सेवक ने उससे पूछा, क्या तूने अभी तक इकरार किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा? So if you confess again and again Lord Jesus Christ, He rose again from among the dead on third day, so the anointing of Holy Spirit can come upon you. इस करके जेकर तुसी बार-बार इकरार करोगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गए आते वो तीसरे दिन जी उठे, तब पवित्र आत्मा का मसा तुहाडे उत्ते आ सकता है। अगर आप ये बात को बार-बार दोहराएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह है वो मेरे लिए मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा, तब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करेंगे। So how that this sin have been punished? आते उस पाप नु किस तरह दंड दिता गया? ये पाप पर दंड की आज्ञा कैसे हुई? Suppose there is a lion in your village. मान लो तुहाडे पिंड दे विच शेर है। अगर मान ले कि आपके गांव में एक शेर है, If it is open, so this lion can do anything. He can kill many people. He can eat many people. जेकर शेर नु खुला छड़ दिता जाए तो ये कुछ भी कर सकता है, ये बहुत सारे लोगों को मार सकता है, बहुत सारे लोगों को खा सकता है। अगर ये शेर को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ये शेर बहुत से लोगों को मार देगा, खा लेगा। But if this lion is put in the cage, पर जे शेर नु पिंजरे विच बंद कर दिता जाए, अगर इस शेर को पिंजरे में बंद कर दें, this lion have been punished. Now it is in cage. क्योंकि हुण इस शेर नु दंड दे दिता गया है, पिंजरे दे अंदर है और ये शेर को दंड दिया गया है, ये पिंजरे के अंदर है। So same manner this sin have been put in the cage. This body have been become the cage for the sin. इस करके ये पाप नु पिंजरे दे विच पा दिता गया है। इस करके ये जो शरीर है ये पाप दे लिए एक पिंजरा बन गया है। और जो है ये पाप को जो है पिंजरे में डाल दिया है, ये जो शरीर है और इसको जो है पिंजरे में डाल दिया गया है। So that's why lion is there. You should be very careful. If secretly you will feed this lion, the lion can become very healthy. He can break the cage. इस करके सानू ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। शेर तो है पर जेकर तुसी चुपके चोरी इनू कुछ खाण दे लई दियोगे, ये बहुत तंदुरुस्त बन जाएगा, ये बहुत ही बलवंत बन जाएगा, अते ही तुहानू खा सकदा है। ये शेर कैद में या पिंजरे में तो है, पर गुप्त तरीके से आप इसको खाने के लिए देंगे तो ये बलवंत हो जाएगा और आपको नाश कर सकेगा। So that's why you should be very careful. You should be very careful in fellowship, in praying and attending the meetings and obeying the servants of God. इस करके संगत दे विच, प्रार्थना दे विच, बंदियां दे विच शामिल होने दे रही अते परमेश्वर के सेवकां दी आज्ञाकारी करन दे रही तुहानू बहुत ही ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। इसलिए आपको जो है आराधनाओं में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के सेवकों के आज्ञाकारी करने में बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए। So those who obeyed, those who understood the truth, they all got victory and their life have been prospered. They all have become worthy for the heavenly kingdom. जेड़े सच्चाई नु जानदे हन, जिन्हां ने सच्चाई दी आज्ञाकारी कीती है, उन्हां दा जीवन बहुत ही खुशहाल बन गया अते वो फतेहमंद बन गए अते वो परमेश्वर दे राज दे योग बन गए। जिन लोगों ने सत्य को माना है, उसके पीछे चलते हैं, वो लोग बहुत ही उन्नति प्राप्त किया है और वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बन चुके हैं। But some, those who have not believed the doctrine, those who have not obeyed the doctrine, and like this, again this lion have broken the cage and have came out and destroyed their life. That's why some people, that they have become backsliders, and like this again they have become very worse sinners. ऐसे करके पर जिन्हां लोकां ने इसकी आज्ञाकारी नहीं की थी, और शेर उन्हां दे पिंजरे दे विचों बाहर आ गया, वो बहुत ही तंदुरुस्त बन गया, उसने उन्हां दे जीवन नु नाश कर दिता। ऐसे करके बहुत सारे लोग पीछे हट गए हैं आते वो वापस वो अपने पुराने जीवन दे विच आ गए हैं। जिन लोगों ने उपदेश को माना नहीं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं की है, उनके लिए वो शेर जो है पिंजरे से बाहर आ चुका है, इसीलिए वो अपने जीवन में पीछे हुई हालत में दिखाई देते हैं। So those who take water baptism, they are coming in Jesus, and like this, by receiving Holy Spirit, they are become a new creature
in Lord Jesus Christ. ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਵੀਂ श्रेष्ठ बन जाते हैं। और जो लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने से हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। So that's why it is written for Jesus that you have prepared a body for me. ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह के बारे इस तरह लिखा हुआ है कि तू मेरे लिए एक देह तैयार की थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि तूने मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया है। First this is for Jesus, then again it is for all those who follow Jesus. आते सब तो पहना है प्रभु यीशु मसीह दे रही है, आते उस तो बाद उन्हें सबना दे रही है जेड़े प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। और सबसे पहले ये प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके बाद उन सब के लिए जो उसके पीछे चलते हैं। So that your body will be changed, it will become a new body. ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਹ ਬਣ ਜਾएगी। आपका शरीर बदल कर एक नया शरीर बन जाएगा। A body without sin. आते ये शरीर जो है पाप तो रहित होएगी, एक ऐसा शरीर जो पाप से रहित होगा। So you will have a new heart. You will have the heart of flesh. You will have very holy heart. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਾंस ਦਾ ਦਿਲ होएगा, पवित्र दिल होएगा। आपके पास एक नया हृदय होगा, मांस का हृदय होगा, पवित्र हृदय होगा। So new body without new heart and new spirit cannot be possible. आते नवा जो शरीर है ये नवे दिल तो आते पवित्र दिल तो बिना संभव नहीं है। ये नया देह और नया हृदय जो है पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। If you accept Jesus, if you accept the doctrine, if you accept the truth, really you will become a new person. जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह नो सच्चाई नो ते तालीम नो स्वीकार करोगे तो सचमुच तुसी एक नवे व्यक्ति बन जाओगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को सत्य को उपदेश को मानोगे आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। So confessing all your sins, if you take the right water baptism, really everything will be changed. Your body also will be changed, your heart will be changed, your spirit will be changed. जेकर तुसी अपने पापां दा इकरार करके पानी दा बपतिस्मा लोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ शरीर बदल जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ मन बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ जीवन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप अपने पापों का अंगीकार करके पानी का बपतिस्मा लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हृदय बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपका शरीर बदल जाएगा। But if you take water baptism for marriage, if you take water baptism for foreign study visa, or you take water baptism for some other certificate, this and that, so then nothing will be changed. पर जेकर केवल तुसी विआह दे लई जां विदेश विच जाण दे लई जां वीजे दे विच जाण दे जां कोई दस्तावेज बनाण दे लई पानी दा बपतिस्मा लेंदे हो तो कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं बदलेगा, उसी तरह रहेगा। अगर आप शादी करवाने के लिए या बाहर जाने के लिए या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाने के लिए पानी का बपतिस्मा लेते हो तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। Some mothers, they stop their daughters. Daughter want to take water baptism for the kingdom of God, but mother is telling, we do not know whether we will find a good boy for you, so you don't take water baptism. Some mothers are stopping. कई माता पिता अजय हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ शादी ਦਾ मैच के जीवन साथी किस तरह मिलेगा या नहीं मिलेगा तेनू इसलिए कुछ माता पिता इस तरह अपने बच्चों को पानी का बपतिस्मा लेने तो रोकते हैं। कई जो बेटियां वो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं पर उनके माँ बाप उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता तेरे ब्याह के लिए कैसा लड़का मिलेगा, अच्छा मिलेगा या नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को पानी का बपतिस्मा लेने से रोकते हैं। So those who take water baptism, right water baptism, they are doing the will of Jesus. And no one should oppose them. You, otherwise you will be like this Paul. And Jesus will say to you also, why you are persecuting me? ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਲੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ पौलुस की तरह हो सकते हो। और जो है कई लोग जो है जो परमेश्वर के उपदेश को मानते हैं उसे सत्य को जानते हैं पर कई बार हम लोग जो है आप में से कई लोग परमेश्वर की योजना के विरोध में हो गए और शायद आप पौलुस के समान हो सकते हो। So surrender your life, surrender to do the will of God. अपना जीवन समर्पित करो, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करो। आप अपने जीवन को अर्पण करें, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दें। May God bless this. परमेश्वर सानू बरकत दे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।